हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गिव मॉक। आई होप आप लोग सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. So, guys, as you are already aware that SEBI has come up with the Grade A recruitment, which is a very, very, very good job, and which is one of the best job in the country. And I hope you all are working hard and preparing hard for this examination. So guys, in order to help you out with your preparation, we have come up with the important MCQ series on Companies Act 2013, and we will come up with another series of SEBI questions, SEBI Grade A related questions as per the SEBI Grade A syllabus. So before moving to the question, let me take you to the brief introduction on Companies Act 2013. So the company, it was the Companies Bill 2013, which got assent of the President of India on 29th of August 2013. After the assent of President of India, it got published in Official Gazette of India on 30th of August 2013, and consequently it became the Companies Act 2013. So इस एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं. और जैसा कि आप लोगों को पता है, you must have gone through the SEBI syllabus. So SEBI has given the specific reference to the chapters which they might ask, from these chapters they might ask the question in the examination. So they have given the specific reference to the chapter number 3, chapter number 4, chapter number 8, 10, 11, 12, and 27. So what we have done is we have picked up some important questions from these chapters so that it goes in line with your preparation, and it goes in line with the SEBI syllabus. So let's move to the first question. So the first question is, a private company can issue shares via. You can see the options on your screen, and I'll tell you the right answer. Before that, you might, if you want to guess, you can do that, or if you know the correct answer, you can definitely give us. You can definitely write the comment in the comment section. So the right answer for this question is, it is option C. Private company can issue shares via right issues, bonus issues, and private placement. Only the initial public offer, it won't be there for private, in case of the private company, because only the publicly listed company issues shares via the public offer. बेसिकली व्हाट हैपेंस, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो जो जब भी उन्हें फंड रेज करना होता है या एक्सपेंशन करना होता है अपनी कंपनी का, तो वो क्या करती हैं, वो पब्लिकली जाती हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड आफ्टर दैट दे बिकम द पब्लिकली लिस्टेड कंपनी. एज यू कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन, a public company may issue securities through public offer and through private placement and through a right issue or bonus issue. पब्लिक ऑफर में आप देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, और ऑफर फॉर सेल है. वेयर इज प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज by way of right issue or bonus issue or through the private placement. Okay, so guys, let's move on to the new next question. Next question number 2. Question number 2 में ये पूछा गया है कि a company may issue fully paid up bonus shares to its member out of which sources. इसमें मतलब सोर्सेस पूछा गया है कि क्या कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू कंपनी जो है बोनस शेयर्स इशू कर सकती हैं. तो आप स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. जो कंपनी है वो बोनस शेयर्स जो इशू करती हैं वो आउट ऑफ देयर फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो है क्लियरली ये दिया हुआ है कि नो कंपनी can issue fully paid up bonus shares out of its revaluation reserves. It's strictly prohibited in the Companies Act 2013. So the right option is, company जो shares issue कर सकती हैं bonus shares, वो है free reserve, security premium account and capital redemption reserve account. आप वो सेम चीज आप जो है एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं. सेक्शंस जो दिया हुआ है, ये सेक्शन 63(1) है, जिसमें कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि बोनस शेयर्स कंपनी किस किस सोर्सेस से इशू कर सकते हैं.
So it's clearly written free reserves, securities premium account, the capital redemption reserve account. Okay, you can quickly go through the definition of these sources. Free reserves, these are reserves, which company can freely draw. These reserves are not for any specific purpose, and these reserves particularly created by the company for issuing bonus shares, declaring dividends, and writing off the losses or any share issue expenses. Okay, and the second source is the security premium account. So security premium account, you must have heard that the company, when companies goes public, when company go public, they issue shares. Okay, so the book value is something else, but the market value is something else. So कंपनी गेन कंपनीज क्या होता है कि जो शेयर पे प्रीमियम गेन करती है, वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो रखती है, उस सोर्सेज के थ्रू भी कंपनीज क्या है बोनस शेयर्स इशू कर सकती हैं अपने मेंबर को, अपने शेयर होल्डर्स को. ओके, सपोज किसी कंपनी का शेयर्स 10 रुपए बुक वैल्यू है और उसका आईपीओ जो है स्टार्ट होते ही जो है शेयर बिकना स्टार्ट होता है सपोज 50 रुपीज पे, तो 40 रुपीज जो है शेयर का प्रीमियम गेन करती है, और वो प्रीमियम जो वो गेन करती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखती है, और उसके थ्रू ही वो बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं कंपनीज. Okay, and the third source is the capital redemption reserve account, through which the companies may issue bonus shares. Okay, so let's move to the third question. So third question is, a company may buy back its own shares by passing the special resolution or the resolution passed by the board. Every buyback shall be completed within a shall be completed within a period of फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन. सो इसमें आपको आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पीरियड पूछा गया है कि जब कंपनीज कोई शेयर बायबैक करना चाहती है तो वो रेजोल्यूशन से कितने दिनों के अंदर, रेजोल्यूशन पास करने से कितने दिनों के अंदर जो है वो शेयर को बायबैक कर सकती हैं. एक टाइम पीरियड कंपनीज एक्ट में दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनीज को बायबैक करना होता है अपना शेयर्स from the date of passing the special resolution or the resolution passed by the board. So as you can see, there are 4 options: 30 days, 180 days, 1 year, and 2 year. So the correct answer is it's option C, 1 year. So within 1 year companies को क्या करना होता है, अपना shares जो है buyback करना होता है from the date of passing resolution. Okay, so अगर within 1 year के अंदर ये नहीं करती तो कंपनीज बायबैक नहीं कर सकती एज पर द कंपनीज एक्ट. और कंपनीज, मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनीज जो बायबैक करती हैं शेयर्स, वो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिट करना चाहिए, तभी वो अपना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, यू कैन क्विकली गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. So buyback, what is buyback? Let me quickly explain you what is buyback. Buyback is a mechanism that enables the company to approach the existing shareholder to repurchase the shares they hold of the company. Companies क्या करती हैं, अपने जो है शेयर होल्डर का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, या रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करने के लिए, या खुद के प्रोमोटर्स का जो शेयर्स होता है वो कंसोलिडेट करने के लिए कंपनीज जो है अपना शेयर्स बायबैक करती हैं. So as per section 68(4) of the Companies Act, every buyback should be completed within 1 year. देखिए आप explanation में already दिया हुआ है कि within 1 year they have to buy back from the date of passing of the resolution. Okay, so advantage भी यहाँ पे दिया हुआ है explanation में, you can quickly go through the advantage. Advantage of buyback is, देखिए इसमें clearly लिखा हुआ है कि increase in the shareholders value. What happens is buyback are beneficial to shareholders. The decrease in the number of share leads to rise in earning per share. So इस तरह से क्या होता है, अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो इट गो मार्केट में ये एक सेंटिमेंट जाता है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफी अच्छा है, एंड कंपनी इज एबल टू बायबैक इट्स शेयर्स. ओके, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ऑफ अर्निंग पर शेयर. ओके, now let me move to the fourth question. Okay, so fourth question is, within how many days the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate account from the date of the declaration of such dividend by the company.
तो क्वेश्चन 4 में ये पूछा गया है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस डिक्लेरेशन के कितने दिनों के अंदर उसे जो डिविडेंड अमाउंट है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट अकाउंट में वो क्रेडिट करना होता है. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 30 days, 15 days, 7 days and 5 days. So the correct answer is option D, that is 5 days. Let's quickly go to the explanation. As you can see, as per section 123(4) of the Companies Act 2013, the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in separate account within 5 days from the date of declaration of such dividend. So कोई कंपनीज अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उनको 5 दिनों के अंदर शेड्यूल बैंक, किसी भी शेड्यूल बैंक के सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है जो भी डिविडेंड अमाउंट है. ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. So guys, question number 5 is a listed company or a company belonging to such class may appoint an audit firm as auditor of the company for how many years continuously. So इसमें पूछा गया है कि कोई भी जो कंपनी है वो ऑडिट फर्म, कोई भी ऑडिट फर्म को एज ए ऑडिटर कितने सालों के लिए कंटिन्यूसली, कितने सालों तक रख सकती है. सो इसका जो आंसर है वो है 10 years, ऑप्शन सी. लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन. उसमें देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 139(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो लिस्टेड कंपनी और ए कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट. देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा, एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive years, 10 years. दैट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल को अगर कोई कंपनी एज ए ऑडिटर अपॉइंट करती है तो वो कंटिन्यूसली 5 years तक ही अपॉइंट कर सकती है. उसके बाद किसी दूसरे इंडिविजुअल को उसे अपॉइंट करना पड़ेगा या नहीं तो ऑडिट फर्म को अपॉइंट करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो किसी ऑडिट फर्म को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करती है अपने कंपनी में, सो उसको 2 terms of 5 consecutive years, दैट मीन्स 10 years कंटिन्यूसली वो लोग अलाउ कर सकते हैं, एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं उसमें. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. In case of public company, board of directors consisting of individuals as directors shall have minimum number of fill in the blanks and directors. So options इसमें दिया हुआ है कि कितने डायरेक्टर कोई भी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी, किसी भी पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं. सो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 7. सो इसका करेक्ट आंसर है 3. कोई भी पब्लिक कंपनी जो है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए. ये कंपनीज एक्ट के 149 सेक्शन में दिया हुआ है. एज पर सेक्शन 149(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें देखिए सारे जो कंपनीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, उसका मिनिमम नंबर दिया हुआ है, कितने डायरेक्टर्स उन लोगों को मिनिमम जो है अपॉइंट करना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द टोटल नंबर ऑफ minimum directors is 3, and in case of private company the number should be 2, and in case of one person company the number should be 1 director. Okay, so let's go to the question number 7. In case of listed public company, how many directors should be independent directors out of the total number of directors? So question number 7 में ये पूछा गया है कि कोई भी कंपनी जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसमें जितने हैं उसका कितना परसेंट या कितना जो है भाग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. सो ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी इज 2/3 एंड ऑप्शन डी इज 50%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1/3. किसी भी कंपनी को जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. एज पर सेक्शन 149(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every listed company shall have at least 1/3 of total number of directors as independent directors, and the central government may prescribe the minimum number of independent directors in case of any class or classes of public companies. आप जैसे कि देख सकते हैं सेक्शन 149 में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इसको मिनिमम नंबर चेंज भी कर सकती है. ठीक है, so let's move to the next question. Question number 8. Every company shall hold the first meeting of the board of directors within how many days of the date of its incorporation?
सो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेशन के कितने दिनों के अंदर उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग करनी होती है। सो द पहला ऑप्शन है 15 डेज, सेकेंड ऑप्शन है 30 डेज, थर्ड ऑप्शन इज 90 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 180 डेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 30 डेज। 30 दिनों के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर कंपनी को जो फर्स्ट मीटिंग करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग। ओके, ये देखिए कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, यू कैन क्लियरली रीड हियर थ्रू द एक्सप्लेनेशन। एज पर सेक्शन 173(1) of the Companies Act 2013, every company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of date of its incorporation. Okay, and thereafter hold a minimum number of 4 meetings of its board of directors every year. उसके बाद पहला मीटिंग करने के बाद एवरी ईयर 4 मीटिंग कम से कम मिनिमम होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस which does not include the key details of the issue such as its price and the number of shares offered। ये पूछा गया है कौन सा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपनी जो है पब्लिकली जाती हैं, आईपीओ निकालने से पहले उन्हें एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। सो वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि की डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, सच एज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन। दैट मीन्स ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं होते, जैसे कि जो की इंफॉर्मेशन होते हैं कंपनीज का, जैसे कि प्राइस ऑफ द इशू, प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड। सो ये सारी चीजें नहीं होते। सो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसको कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टस है, नेम द प्रोस्पेक्टस व्हिच इज प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। इसमें ये पूछा गया है कि कंपनीज एक ऐसे टाइप का प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं जिससे वो मल्टीपल पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस। तो ऐसे टाइप का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर ए इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसका सही आंसर है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन ए, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस which is which are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus। Okay, so in simple terms क्या होता है, shelf prospectus is a single prospectus for multiple public offers। Okay, so guys, we have come to an end। 10 क्वेश्चन हम लोग लेके आए थे आपके लिए। वी विल कम विद अनदर 10 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द MCQ सीरीज ऑन कंपनीज एक्ट 2013। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज ऑन SEBI Grade A, and we will come up with the SEBI Grade A's syllabus wise MCQ series, okay, so that it could help you in excelling the exam. Thank you so much for watching. Thank you.